Hello students, how are you? I hope you are all fine. You are all welcome at Hemdisha English classes. I Hemant again going to summarize your next lesson from 11th class. The book name is Hornbill, lesson number 4. The name of the lesson is Landscape of the Soul, written by Natalie Towery. This lesson is more enthusiastic and really beautiful lesson, and you will definitely enjoy to listen the full summary. So let us start the summary. In this chapter, a writer contrasts two forms of art, Chinese art and European art, by using different stories. In the first story is about a very popular Chinese painter, Wu Daozi. He was hired by the Tang Emperor Zhenzong to decorate the wall of the palace. Wu painted a beautiful scenery. However, he painted a cave at the foot of a mountain that was inhabited by a spirit. While showing his masterpiece to the emperor, Wu claps his hand and immediately the cave opens where the gas vanishes. By this, author says it denotes that only the masters are aware of the way within can go anywhere in the material form. There is another story about another popular Chinese painter who did not draw a dragon's eye, fearing it would become real and fly out of his painting. Next story is about the blacksmith Quentin Maxis, who fall in love with the daughter of a painter. Seeing her father's disapproval, he painted such a realistic fly that the master tried to sweat it away. Seeing Quentin's work, fathers accepts him. Author says that Chinese painter want so far as is concerned. Seeing the Quentin's work, Father accepting author says that a Chinese painter wants the person to enter his mind to understand the painting, while a European painter wants the viewers to borrow his eyes. Further, the author talks about Chinese philosophy, Shan Shui, meaning mountains, water, and Wen Yang. Next is that second part of the Getting Inside Outside Art is written by Brinda Suri, who talks about the concept of art brut. Art brut means the art of ones who have to form a rights to call as an artist. Though they are not skilled, but they think out of the box. For his, she gave the examples of Natchan, who is the creator of Rock Garden in Chandigarh. So students, here the summary gets over from Hornbill 11th class, lesson number 4, Landscape of the Soil, written by Natalie Towery. And I request you to subscribe my channel, like my channel, share my channel so that you will be benefited and your all friends will be also benefited. So try to listen carefully so that you will be achieve the high marks in your examinations. Thank you very much to listening me carefully. Here the summary in English gets over. Now I am switching over for Hindi summary. विद्यार्थियों, आपका स्वागत है 11th क्लास की समरी। आज मैं हेमंत हाइम दिशा इंग्लिश क्लासेस के अंदर में होके मैं आपको समझा रहा हूँ एक समरी। 11th क्लास का पाठ है, 11वीं कक्षा का, हॉर्नबिल किताब का नाम है, जिसमें से लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सॉइल, इसकी समरी, इसका सारांश में समझाने जा रहा हूँ। इसके लेखक हैं नैथले टॉयवरी और समरी के लिए मैं आपको आइए आगे बढ़ाता हूँ। इस पाठ में लेखक दो प्रकार की कलाओं की विभिन्नता दिखाता है। अलग अलग कहानियों के द्वारा चीनी कला यूरोपियन कलाओं के बारे में। ये
इसमें देखिए एक कहानी ऐसी है कि इसमें बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार होता है, उसका नाम है वू दाओजी, जो कि चाइनीज़ है। उसके सैंग के राजा जुआनजोंग ने अपनी महल की दीवारों को सजाने के लिए नियुक्त कर लिया। वो ने खूबसूरत दृश्य देखते हुए एक सीनरी बनाई। उसने पहाड़ के नीचे गुफा भी बनाई, उसके अंदर एक आत्मा रहती थी। वह जब अपनी कृति राजा को दिखा रहा था, वो ने ताली बजाई और तुरंत ही गुफा खुल जाती है। वो अंदर चला जाता है और गायब हो जाता है। इसके द्वारा लेखक यह बताता है कि सिर्फ कलाकार ही कहीं भी कैसे भी पहुंच सकता है। फिर वो दूसरे चीनी कलाकार की दूसरी कहानी बताता है कि उसने पेंटिंग पूरी करने के पश्चात ड्रैगन की आँख नहीं बनाई। उसे डर था कि इतनी वास्तविक कला हो गई कि ड्रैगन पेंटिंग से उड़ जाएगा। अगली कहानी एक लोहार क्विंटेन मैक्सिस की है, जो कि एक कलाकार की बेटी के प्यार में पड़ जाता है। उसके पिता की आपत्ति करने पर उसकी पेंटिंग पर वास्तविक मक्खी बनाता है, वो उसे भगाने लगता है। क्विंटेन की प्रतिभा देखकर लड़की का पिता मान जाता है। लेखक का कहना होता है कि चीनी चित्रकार क्या कहता है, लोग उसकी दिमाग से उसकी पेंटिंग देखें और समझें कि जब यूरोपीय चित्रकार चाहता है लोग उसकी आंखों से उसकी पेंटिंग को देखें। आगे लेखक चीनी फिलॉसफी शेंगशुई के बारे में बताता है, जिसका अर्थ है पहाड़ और पानी। दूसरा भाग बृंदासुरी के द्वारा लिखा गया है, जहाँ वह आर्ट ब्रट के बारे में बताती है। आर्ट ब्रट का मतलब है उन लोगों की कला जिन्हें कलाकार कहलाने का औपचारिक अधिकार नहीं है। उन्होंने इसकी कोई शिक्षा नहीं ली, पर वे लोग कुछ अलग सोचते हैं। इसके लिए उसने नेकचंद का उदाहरण दिया। उन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे आके ये समरी समाप्त होती है। मेरे को उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे और परीक्षा में क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त कहानी, सारांश, समरी। हालांकि इसको आप समझेंगे तो आपको पाठ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लेसन नंबर 4 था, हॉर्नबिल से 11वीं क्लास की किताब से। इस पाठ का नाम था लैंडस्केप ऑफ द सॉइल, रिटन बाय नैथली ट्राउवेरी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे के पाठ भी मैं समय समय पे आपको देता रहूँगा। आपसे इससे पहले कि मैं समाप्त करूँ अपना कथन, आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करना न भूलिए, लाइक करना न भूलिए, शेयर करना न भूलिए और खुश रहिए, मस्त रहिएगा। अपने जीवन में खुशहाली को अपनाइए। आप जितने पढ़ेंगे उतने ही आप खुश होते चलेंगे। मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत का नतीजा हमको आगे चल के बहुत अच्छा मिलता है। मेरी इस बात पे विश्वास करते हुए अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरह से रद्द कर दीजिएगा। यही आपका अच्छा जीवन बनाएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।